بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایڈوکیشنل ویڈیوز کی مدد سے یقیناً اپنا نصاب مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مضامین کی اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک نیا آج ہم نہم جماعت میں جغرافیہ میں زمین کی مختلف شکلوں کے بننے اور بگڑنے میں حصہ لینے والے بیرونی عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے موضوع کو آسان، دلچسپ اور اثر انگیز بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ عمل ایک طرفہ نہ ہو۔ اس لیے آپ بھی اپنے تجربات، موضوع کی مناسبت سے اپنے مشاہدات اور پیشکش کے متعلق اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں جن اہم نکات کا ہم جائزہ لیں گے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرسودگی کے معنی سمجھیں گے، اس کے بعد طبعی فرسودگی، کیمیائی فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں آپ سطح زمین کی اندرونی ہلچل کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اندرونی حرکات کی وجہ سے زمین کی مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ سطح زمین پر کئی عوامل کی وجہ سے زمین کی شکلوں کا بننا اور بگڑنا متواتر ہوتا رہتا ہے۔ اس سبق میں ہم بیرونی عوامل اور اس سے وجود میں آنے والی زمینی شکلوں کا مطالعہ کریں گے۔ سطح زمین پر سرگرم رہنے والی مختلف طاقتوں کی وجہ سے بیرونی اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر شمسی توانائی، کشش ثقل اور سطح زمین پر بہنے والی اشیاء سے منسلک حرکی توانائی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اندرونی حرکات کی وجہ سے زمین پر بننے والی زمین کی شکلیں ابتدائی اور ثانوی شکلوں کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں، مثلاً بر اعظم، پہاڑ، سطح مرتفع، میدانی علاقے وغیرہ۔ بیرونی عوامل میں فرسودگی مختلف وجوہات سے ابتدائی اور ثانوی شکلوں میں تبدیل ہو کر اس سے تیسری قسم کی زمین تیار ہوتی ہے، مثلاً ریت کے ٹیلے، تکونی علاقے، یو شکل کی دراڑیں وغیرہ۔ اب ہم آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں گے۔ دی ہوئی تصاویر کا آپ مشاہدہ کیجیے۔ ہر تصویر میں چٹانوں کا مشاہدہ کیجیے۔ تصویر میں آپ کو چٹانوں میں سوراخ، ٹوٹی ہوئی اور کٹی ہوئی چٹانیں نظر آئیں گی۔ ایک تصویر میں چٹان بوسیدہ نظر آ رہی ہے۔ ان کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہوگی؟ اس پر غور کیجیے۔
आइए जरा गौर से इन तस्वीर को देखते हैं और चट्टानों की हालत की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। इन चट्टानों में काफी सुराख दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ आप देखें, एक तरफ तो दरख्त है जिससे चट्टान को नुकसान पहुंचा है और दूसरी तरफ चूंटी मिट्टी कुरेदते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ एक तरफ तो बिल्कुल चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और दूसरी तस्वीर में रंग भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें चट्टानों का बिखराव दिखाई दे रहा है। यहाँ गुंबद नुमा टेकरी की परतरेजी आप देख सकते हैं। परतें दिखाई दे रही हैं आपको। तो ऐसी चट्टानें आपने कभी देखी हैं? कहीं आप गए हों, सैर के लिए गए हों या किसी दूसरे मकाम पर आप गए हों, तो ऐसी चट्टानें, ऐसे मिलती जुलती चट्टानों को आपने देखा हो, ऐसा किसी के साथ हुआ है? इन चट्टानों की ऐसी हालत क्यों हुई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अरे ये तो चट्टान से धीरे धीरे मिट्टी खिसकती जा रही है। मुसलसल ये अमल जारी है। और ये क्या? अरे ये तो चट्टान का एक बड़ा हिस्सा रह गया। चट्टानों का टूटना, कमजोर होना, ये कुदरती अमल है। इसे फरसूदगी या रेजाकारी कहते हैं। फरसूदगी या रेजाकारी की 3 किस्में हैं। तबई फरसूदगी, कीमियाई फरसूदगी और हयातियाती फरसूदगी। फरसूदगी की मुख्तलिफ अक़साम को समझने से पहले जरा एक एक्टिविटी कर लेते हैं। क्या करना है आपको? एक प्याज लीजिए, उसे दरमियान से काट लीजिए। काटे हुए हिस्सों का मुशाहिदा कीजिए। जो तलबा किचन में अपनी अम्मी जान की मदद करते हैं, उनके लिए ये तजुर्बा कुछ नया नहीं होगा। अक्सर प्याज काटी होगी आपने, तो क्या देखते हैं जब प्याज को काटते हैं हम, उसमें हमें परतें दिखाई देती हैं, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। अब इस प्याज की हर परत को अलग करने की कोशिश कीजिए। बड़ी आसानी से एक एक करके आप प्याज की परतें अलग कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी हमने क्यों की आप समझ गए होंगे। जिस तरह प्याज की परतें अलग होती हैं, इसी तरह का अमल कुदरती तौर पर खुली हुई चट्टानों के साथ होता है। सूरज की शुआओं की गर्मी की वजह से चट्टान का ऊपरी हिस्सा ज्यादा गर्म होता है, उसकी बनिस्बत अंदरूनी हिस्सा सर्द होता है। तो गर्मी की वजह से चट्टानों की ऊपरी सतह छिलकों की तरह बिखर जाती है। ये चट्टानों की झीज होती है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है
कि ऊपर की परत जो है वो बिल्कुल प्याज के छिलके की तरह अलग हो गई है, बिखर गई है। इसे चट्टान की झीज कहते हैं। ये तबई फरसूदगी है। तो दर्जे हरारत का असर आपने देखा, किस तरह चट्टान की झीज होती है। तबई फरसूदगी की दीगर अहम वजूहात कुछ इस तरह है। दर्जे हरारत तो एक अहम वजह है ही, साथ साथ अंजुमाद, कलमाओं में इजाफा, दबाव का इखराज और पानी, ये तबई फरसूदगी की अहम वजूहात हैं। आइए अब देखते हैं कीमियाई फरसूदगी किसे कहते हैं। कीमियाई फरसूदगी में पानी का किरदार अहम होता है। चट्टान कई मादनियात का मुरक्कब है। पानी आफाकी मोहलिल है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कई अशिया पानी में आसानी से तहलील हो जाती हैं। तहलील शुदा अशिया की वजह से उसकी हल पजीरी की ताकत बढ़ती है और आसानी से हल ना होने वाली अशिया भी उसमें हल हो जाती हैं। जिन इलाकों में बारिश का तनासुब ज्यादा होता है, वहां इस किस्म का अमल होकर ऐसी कीमियाई फरसूदगी होती है। कीमियाई फरसूदगी भी मुख्तलिफ तरीकों से होती है। इनमें कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और हल पजीरी शामिल हैं। बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में तहलील होकर पानी के साथ बह जाती हैं। उसकी नमकियात से कीमियाई अमल होकर चुनखड़ी तैयार होती है। मसलन जिले अहमदनगर के वडगांव में दरिया में चुनखड़ी का कीमियाई अमल होता है, यानी कीमियाई फरसूदगी होती दिखाई देती है। उसी तरह हल पजीरी के अमल से चट्टानों का नमक हल होकर ये भुरभुरी हो जाती है। अब बात करते हैं हयातियाती फरसूदगी की। तबई और कीमियाई फरसूदगी के अलावा हयातियाती वजूहात की बिना पर भी चट्टानों की फरसूदगी अमल में आती है। आपने कई मर्तबा किलों की सैर की होगी, किलों की फसील पर उगे हुए दरख्त देखे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि उन जगहों पर दरख्तों की जड़ें गहराई तक जाकर फसील के पत्थर ढीले हो गए हैं। दरख्तों की जड़ें बढ़ने के बाद चट्टानों के जर्रात में तनाव पैदा होता है और वो चट्टानें फूटने लगती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीर में देख रहे हैं। हयातियाती फरसूदगी की एक वजह दरख्त है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे हशरातुल अर्ज जो जमीन में बिल तैयार करते हैं। इन चूंटियों को देख रहे हैं आप। चूंटियां मिट्टी का मखरूती ढेर बनाती हैं। चूंटियों के अलावा चूहे, घूस, खरगोश, केचुए भी जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इन तमाम जानदारों को कुरेदने वाले जानवर कहते हैं। बरोइंग एनिमल्स यानी वो जानवर जो जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इनके कुरेदने की वजह से भी चट्टानों की फरसूदगी होती है। इसके अलावा कई चट्टानों पर सब्ज काई,
गुले संग, जिसे दगड़ फूल भी कहा जाता है, जैसी नबातात नशोनुमा पाती है, जिसकी वजह से भी फरसूदगी होती है। तो ये मॉस, फंगी, एल्गी, ये भी फरसूदगी का बायस बनते हैं। क्या आपने अपने इतराफ में हयातियाती फरसूदगी का अमल देखा है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। एक और सरगर्मी है आपके लिए। इंटरनेट की मदद से भारत में जमीन के खिसकने के वाकयात तलाश कीजिए और उसके मुतालिक मुख्तसरन लिखिए। और अगर आप चाहें तो हमें इस एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। इज इट ओके? वेरी गुड। तो आज का हमारा सेशन यही मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगली दफा मिलेंगे।